Welcome students to my channel Khurram Sir Spoken English once again. Today we are going to talk about an important topic which is about articles, and if you have not shared or if you have not subscribed to my channel, please do subscribe and also share your comments about this video. And if you have not yet seen my previous videos, please do watch also the previous videos so that you can understand the other topics. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और आप पहले के भी वीडियोस देख लें ताकि आपको मेरे इस वीडियो के बारे में भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स। इन इंग्लिश ग्रामर व्हाट इज आर्टिकल्स? जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? इंग्लिश की ग्रामर में आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। देयर आर इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल? A and an are called indefinite articles. Why we say a and an as indefinite article? There is a reason behind it. Because we use these indefinite articles a and an in a common sense or in a general sense, and they do not show exact relation. For example, I will give you a kind of situation. If I see a boy going on the road, then I can say a boy is going on the road. I don't know who that boy is. मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन लड़का है। कोई भी लड़का हो सकता है जो कि रोड पे जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं a boy is going on the road. तो यहाँ पर मैंने एक जनरली तौर पर बात की है, एक कॉमन तौर पर बात की है कि ए बॉय इज गोइंग ऑन द रोड। और इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बतला रहा है कि व्हाट इज आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमनली और आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी जनरली एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। सो इंडेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन भी यही है कि इंडेफिनिट आर्टिकल does not show exact relation, and there are two things which comes under indefinite article, a and an. Now we have to see what is definite article definition. The definite article definition is if we use the word the, then it is called as definite article. The reason behind for saying this as definite article is this shows you an exact relation, and specifically or especially we are talking about something. For example, if I have already talked about something, then I can again use the before that. For example, a man is going on the road, then I can say the man was my friend, because I already spoke about a person who is not specific to me in the first sentence. Later I said the man. Why I said a man is going on the road first? Because I don't know who that person is. If I already spoke about that person in the paragraph, now I want to talk about the same person in the paragraph, then I say it, the man is my friend. So the is called definite article because it shows exact relation, and if the speaker is talking about something very specific to him and something very specially to him which has been already described by the speaker in the paragraph, then at the time also we use the. So as you see on the board, I have written the types of articles. I have also written how many types of articles are there. I have also written the definition of the articles. A and an are called as indefinite articles because they do not show exact relation, and here we talk in general and common sense. Here we can see use of a. यहाँ पर हम a का इस्तेमाल भी देख सकते हैं कि a कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। a is used before the words which are beginning with the consonant letter. आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या है और वॉवल क्या है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है a e i o u को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वो हम क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। जैसे कि बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, मगर ई कॉन्सोनेंट नहीं है। ई तो एक वॉवल है,
उसी तरीके से एफ एक कॉन्सोनेंट है। तो जो भी लेटर्स नॉर्मली शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से या कॉन्सोनेंट साउंड से, हम उस वक्त ए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बॉय, ए कैट, ए पेन। बॉय कॉन्सोनेंट है, बी से शुरू हो रहा है इसलिए मैंने ए लिखा है। कैट सी से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ए लिखा है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखे हैं इसे समझाने के लिए कि ए का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट से पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सिचुएशन अलग है। ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द साउंड यू एंड वा। अगर कोई वर्ड की साउंड शुरू में यू और वा की आ रही है तो हम वैसे सिचुएशन में वॉवल रहा भी तो हम एन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हमारे टीचर्स ने शुरू में बतलाया था कि एन इस्तेमाल होता है वॉवल से पहले। जैसे कि एन एप्पल, क्योंकि एप्पल जो शुरू हो रहा है वो ए से शुरू हो रहा है। एन ईगल, क्योंकि ईगल शुरू हो रहा है ई से जो कि वॉवल है। उसी तरीके से एन एग, क्योंकि वो भी ई से शुरू हो रहा है, वो भी वॉवल है। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम एन लगा देंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। एक बार क्या कीजिएगा, उस वर्ड को आप पढ़ लीजिए और ये देखिए कि क्या उसकी साउंड यू और वा की आ रही है। अगर आप देखते हैं कि उस वर्ड की आवाज शुरू में यू और वा की आ रही है, प्रोनाउंसिएशन यू या नहीं तो वा का आ रहा है, अगर उस वक्त वॉवेल रहा भी तो हम एन नहीं लगाएंगे। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल केसेस में हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि हम हमेशा वर्ड की साउंड देखेंगे यू और वा। अगर वहां पर वॉवेल भी है तो हम वहां पे एन नहीं लगाएंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको फिरा कर देगा ग्रामर में कि ए कहाँ लगाना और एन कहाँ लगाना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द साउंड यू एंड वा। एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी जब मैं कह रहा हूं तो यूनिवर्सिटी की आवाज में पहले साउंड आ रही है यू, इसीलिए मैंने एन नहीं यूज किया है, ए यूज किया है। अगर आप एग्जाम में एन लिख देंगे यूनिवर्सिटी से पहले तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर साउंड चेक करने का है आपको कि यू की साउंड आ रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूरोपियन, यूरोपियन की स्पेलिंग में ई आ रहा है, और यूरोपियन की स्पेलिंग में क्योंकि ई की लेटर के बाद अगर आप सोचेंगे कि लेटर के हिसाब से एन लिख देंगे क्योंकि वो ई से शुरू हो रहा है तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि पहले उसकी साउंड चेक करें। जैसे यूरोपियन की साउंड में भी आवाज यू की आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। और यहाँ पे मैंने 1 रुपी कॉइन, व की साउंड आ रही है। लिख रहे हैं हम वॉवेल ओ, मगर हम वॉवेल की आवाज कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे व। तो अगर साउंड व की भी आ रही है तो उसी वक्त भी हम ए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वन वे में भी व की आवाज आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे ए लगाया। तो इस पॉइंट को याद रखिए, अगर आपको साउंड यू और व की आ रही है और अगर कोई वॉवेल से वर्ड शुरू हो रहा है, साउंड यू और व की आ रही है, तो उस वक्त हमें एन नहीं लगाना है, उस वक्त हमें ए लगाना है। इस बात को केयरफुली याद रखें। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा द कहां पर लगाया जाता है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिचुएशन समझाने के लिए कि द का इस्तेमाल कब किया जाता है, मैंने यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ के टाइप में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ए मैन इज गोइंग ऑन द रोड। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए मैन इज गोइंग ऑन द रोड, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नहीं जानता कि ये आदमी कौन है, और मैंने इसलिए यूज़ किया है ए मैन इज गोइंग ऑन द रोड। वो आदमी कोई भी हो सकता है, ही कैन बी एनी पर्सन। सो फर्स्ट मैंने यूज़ किया है ए मैन, और क्योंकि ये एम कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ए यूज़ किया है, और जनरली मैं बात कर रहा हूँ ए मैन, कोई भी आदमी हो सकता है, इज गोइंग ऑन द रोड। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद आप गौर से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे द मैन वॉज टॉकिंग लिखा है। मैंने यहाँ पे द मैन क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ए मैन या उस आदमी के बारे में जिक्र कर दिया है, ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अबाउट दैट मैन। सो अगेन इफ आई वांट टू स्पीक अबाउट दैट सेम मैन व्हिच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन प्रीवियसली, देन आई कैन से द मैन, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस आदमी के बारे में आपको यहाँ पे बतला चुका हूँ कि एक आदमी रोड पर जा रहा था, फिर मैं वही आदमी के बारे में कह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा द मैन। फिर उसके बाद वॉज टॉकिंग टू अ बॉय, यहाँ पे मैंने ए इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बॉय के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए, जो कि कॉन्सोनेंट से पहले हम ए ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी ए शॉप लिखा है। अगर आप इसके बाद के सेंटेंस में देखें तो मैंने द बॉय लिखा है, यहाँ पर मैंने ए बॉय फर्स्ट टाइम यूज किया, एक लड़के की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वही लड़के की बात कर रहा हूं जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं वहां पे, इसलिए मैंने द बॉय लिया है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे ए शॉप नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने इन द शॉप लिखा है, तो यानी मैं इसी शॉप की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। तो ऑलरेडी जो चीज की बात हो चुकी है और स्पीकर अगेन उसी चीज को रेफर करना चाहता है, तो वैसे टाइम पर भी हम पर्टिकुलरली द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या इस्तेमाल होते हैं द के, मैं अभी आपको लिखकर भी समझाता हूँ, गौर से देखिएगा। जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, यानी द का इस्तेमाल होता है नदियों के नाम से पहले, माउंटेन पहाड़ के नाम से पहले, होली बुक्स एंड हेवनली बॉडीज मजहबी किताबों के नाम से पहले, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का मतलब जो चीज़ें आसमानी होती हैं जैसा कि स्टार्स और जैसा कि मून सन, ये हेवनली बॉडीज है, सन मून स्टार्स, हेवनली बॉडीज से भी हम पहले द इस्तेमाल कर सकते हैं। और थिंग्स विच आर ऑफ ओनली वन काइंड, या ऐसी चीज़ें जो कि एक ही किस्म की हों, उनके जैसा कोई दूसरा ना हो, जैसा कि देर इज़ ओनली वन मून, देर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ दैट थिंग मून, मून के अलावा दो मून तो हम नहीं कह सकते क्योंकि दो मून है ही नहीं। तो उसी तरीके से हम समझिए आपको द सन भी कह सकते हैं क्योंकि दैट इज़ द ओनली वन काइंड ऑफ थिंग, देर इज़ नो अनदर सेकेंड सन, SUN, सूरज के बारे में हम कह रहे हैं, करेक्ट। तो एग्जाम्पल्स में आप अगर गौर से देखें तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स, द गंगा, मैंने द इस्तेमाल किया है गंगा के नाम से पहले क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है। मैं कह सकता हूं द कृष्णा, क्योंकि कृष्णा भी एक नदी का नाम है इसलिए मैंने द इस्तेमाल किया है। द नाइल, और बहुत लोगों को नाइल क्या है नहीं मालूम, नाइल इज अ रिवर। सो अगर आपको रिवर्स के नाम नहीं मालूम है तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द नेम्स ऑफ द रिवर्स एंड वी कैन यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स। द नाइल, नाइल भी एक नदी का नाम है जिसे हम नील की नदी कहते हैं।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे द गीता लिखा, क्योंकि गीता एक मजहबी बुक है, रिलीजियस बुक है। यहाँ पे मैंने द कुरान लिखा, क्योंकि कुरान भी एक मजहबी बुक है, इसलिए मैंने द लिखा है। द बाइबल, देख सकते हैं आप, बाइबल भी एक रिलीजियस बुक है, इसलिए मैंने द लिखा है। द सन, द मून, द अर्थ, क्योंकि प्लैनेट के नाम से पहले भी द लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसा कि मार्स, जुपिटर, सैटर्न एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द अर्थ, द मून, द सन, ये सब हेवनली बॉडीज हैं, सन और मून, और प्लैनेट द अर्थ है, इसलिए मैंने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। तो हमें ये समझ में आया कि जब कभी हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज की बात करना चाहते हैं जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है, तो वैसे टाइम भी हम पैराग्राफ में सेकेंड टाइम उसको द इस्तेमाल करते हैं। या समझिए द का इस्तेमाल होता है नदियों के नाम से पहले, या पहाड़ के नाम से पहले, या मजहबी किताबों के नाम से पहले, या हेवनली बॉडीज के नाम से पहले, या ऐसी चीज़ें जो कि एक ही किस्म की हो जिनको दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो वैसे टाइम भी हम द यूज़ करते हैं। तो हमने ये देखा कि द कहाँ लगाया जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। हमने ये भी देखा कि ए कहाँ लगाया जाता है और ए को हम इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। इसके बाद हमें देखना है एन के बारे में, जो कि हम आपको डिटेल में फिर अपने नेक्स्ट वीडियोस में बतलाएंगे कि एन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। फिल वक्त के लिए इतना याद रखिए, ए कहाँ लगाया जाता है और द कहाँ लगाया जाता है। एन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि ए एंड द कहाँ नहीं लगाना चाहिए, where we do not have to use these articles a and the, and what are the omissions of the articles। आर्टिकल्स को कहाँ नहीं लगाया जाता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी हम आपको बाद में बतलाएंगे डिटेल में आने वाले वीडियोस में। सो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट, and also do like and share the comments also. For the time being, I can say goodbye, have a nice day, see you, take care, bye bye.